फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ फाइनेंशियल अवेयरनेस सब्जेक्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द आरबीआई एग्जाम्स, सेबी एग्जाम्स एंड अदर बैंकिंग एग्जाम्स। ओके, तो मैं यहाँ आपके लिए आज लेकर आई हूँ कंप्लीट फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट और आपको किसी भी तरीके के बुक्स को चेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ आपके लिए सारे बुक्स को चेस कर रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट को लेकर आ रहे हैं ताकि आपका कंप्लीट फोकस स्टडी पे और प्रैक्टिस पे हो। टेक अ क्विक रिव्यू अबाउट द फाइनेंशियल मार्केट। ओके, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और डेली अपडेट्स लेते रहें। ओके, so we will start today with the financial market and I will give you a quick review about the financial market. Okay, so what is financial market? Financial market is a place where financial securities are traded. Okay, financial securities are traded in a market which is called financial market. If you buy or sell financial assets such as shares, bonds, etc., then you are engaged in a financial market trading. Okay, and what are the main functions of the financial market? We will discuss it a quick update about the financial market functions. First is mobilization of funds. What is mobilization of funds? जब investors जिनके पास savings हैं वो उन्हें लिंक कर देते हैं उन इंडस्ट्रीज से जिन्हें उस इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। ओके, प्राइस डिटर्मिनेशन इज द सेकंड वन। Commodities which are traded in a financial market get their prices from the rules of demand and supply. जब सिक्योरिटीज की डिमांड एंड सप्लाई वहां पे होती है तो उसका प्राइस डिटर्मिनेशन होता है कि उस शेयर का उस इंस्ट्रूमेंट का प्राइस क्या होगा। ओके, liquidity. Financial market helps you to create the liquidity. Liquidity means when you have a security or you can easily sell और आप उससे easily cash में convert कर सकते हैं। जब भी sellers उन्हें securities को बेचकर उसे liquidity में convert करते हैं, that does means it is a liquidity market. Okay, financial market reduce the transaction cost. Okay, तो what are the transaction cost, search cost, information cost reduce हो जाते हैं with the help of financial market, क्योंकि आपको ज़्यादा cost और expense नहीं करना पड़ता है सर्च और information collect करने में। And what are the main components of the financial market? First one is capital market, and capital market के two types हैं, like primary market, secondary market, and the second type of the financial market is money market. Okay. So here we will discuss capital market. Capital market जहाँ companies fund raise करती है long term requirements के लिए। Okay, long term requirements के लिए fund raise किया जाता है। और capital market में two types हैं, like primary and secondary market. And SEBI is the regulatory body of the capital market. Okay, and in the money market where the companies fund raise for the short term period, that is money market, and RBI is the regulatory body of the money market. Next is primary and secondary market. इसको समझेंगे quickly. It is a market for fresh capital or new issue market. Okay, this is the fresh capital or new issue market, where the securities are issued by the company for the first time to the general public and to fulfill the long term. ठीक है, long term capital के requirement को fulfill करने के लिए जब companies new securities launch करती है तो वो primary market में करती है। Okay, और इसमें इशू करने के आपके टाइप्स हो गए, लाइक पब्लिक इशू के द्वारा इशू किया जा सकता है, राइट इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट, बोनस इशू एक्सेट्रा। इन सब मेथड के द्वारा प्राइमरी मार्केट में फंड रेज किए जा सकते हैं। एंड इन द सेकेंडरी मार्केट इट इज अ प्लेस वेयर सिक्योरिटी आर ट्रेडेड बीइंग इनिशियली ऑफर्ड। इसका मतलब कि प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटी जब इशू हो जाती है तो वो सेकेंडरी मार्केट में आती है और उसके बाद वो लिस्टेड कंपनीज के द्वारा स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड की जाती है। Existing securities like share, debenture, bonds, etc. are the traded among the investor in the secondary market. Okay, आप इसे auction market भी कह सकते हैं. It is also called as a auction market for trading of securities through exchange or OTC. OTC is open to customer. मतलब secondary market is a market which is open to the customer, जहाँ वो अपने हिसाब से securities को खरीद और बेच सकते हैं. प्राइमरी मार्केट के फीचर्स क्या हैं? प्राइमरी मार्केट के फीचर्स आपके हो गए, इट इज फॉर प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल। ओके, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल रेज करने में हेल्प करता है एंड दिस इज द वी नो कि दिस इज द न्यू इशू मार्केट ऑफ द सिक्योरिटीज। ओके, एंड फीचर्स सेकेंडरी मार्केट की फीचर्स क्या है? इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ कैपिटल
मार्केट जहाँ पे एक ओपन मार्केट होता है जो कि कस्टमर के लिए ओपन होता है फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। एंड सेकेंडरी मार्केट क्या देता है? लिक्विडिटी ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, क्योंकि आप अपने सिक्योरिटीज को यहाँ पे इजिली सेल करके कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, एंड इन द सेकेंडरी मार्केट ओनली लिस्टेड सिक्योरिटीज कैन बी डेल्ट इन द सेकेंडरी मार्केट। ओके, इसका मतलब है कि सिर्फ लिस्टेड कंपनीज, उनकी लिस्टेड सिक्योरिटीज ही सेकेंडरी मार्केट में डील की जाती है। Next, there is a difference. This is a quick difference about the primary and secondary market. Okay, so we know that कि primary market जो है वो new securities के लिए है and secondary market जो है वो existing securities के लिए। Okay, so it directly promotes capital formation. Capital formation के लिए primary market की मदद ली जाती है और capital formation indirectly form secondary market भी करता है by the sale and purchase of securities. Okay. An investor can buy in the primary market. आप जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो सिर्फ सिक्योरिटीज बाई कर सकते हैं। and in the secondary market buying and selling मतलब कि खरीद और दोनों बेच भी सकते हैं। ठीक है, खरीद और बेच दोनों सकते हैं सेकेंडरी मार्केट में। सिक्योरिटीज नीड नॉट टू बी लिस्टेड। प्राइमरी मार्केट के लिए सिक्योरिटीज का लिस्टेड होना जरूरी नहीं है, बट इन द सेकेंडरी मार्केट लिस्टेड सिक्योरिटी ही ट्रेड की जाती है। Primary market helps in capital formation and this helps investors to invest money in securities और उसको बाद में सेल करके वो कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, प्राइस विल बी फिक्स्ड फॉर द सिक्योरिटीज। प्राइमरी मार्केट में प्राइस फिक्स होती है और सेकेंडरी मार्केट में वो प्राइस डिपेंड करती है उनके डिमांड एंड सप्लाई पे। मान लीजिए कि हमारा शेयर अभी डिमांड में है तो उनका प्राइस हाई होगा, अगर सप्लाई उनकी उसके अकॉर्डिंग है तो उससे उसका प्राइस डिटरमाइन किया जाता है। सिक्योरिटीज कैन ओनली बी सोल्ड वंस। प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज सिर्फ एक बार बेची जा सकती है, उसके बाद वो ट्रांसफर कहाँ हो जाती है? सेकेंडरी मार्केट पे। ओके, जहां पे सिक्योरिटीज कैन बी सोल्ड फॉर इन्फिनिट नंबर्स ऑफ टाइम और उन्हें बेचने के लिए डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत होती है। ओके, so this is the difference of the primary and secondary market. Ways to raise fund in the प्राइमरी मार्केट। ठीक है, फंड्स रेज करने के क्या तरीके हैं प्राइमरी मार्केट में? तो पहला है आपका पब्लिक इशू। पब्लिक इशू क्या है? पब्लिक इशू के 2 टाइप्स होते हैं, लाइक दिस इज IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, एंड द सेकंड इज FPO, दैट इज फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तो IPO हमेशा क्या है? IPO is the first public offering. It is the main source of the company to raise fund by the issue of new shares for the first time. Okay, this is the an IPO is done always by the unlisted company. And IPO थोड़ा risky भी है because it is new, so it is a risky market for the issuing shares. Okay, so this is done by the unlisted company for the first time to the public. But in the FPO, it is completely different from the IPO because follow on public offer में क्या होता है? Suppose जब कंपनी ने अपने 20% शेयर सेल कर दिए फॉर द फर्स्ट टाइम, इट वाज एन IPO, उन्होंने इशू कर दिया अपना 20% शेयर, बट आफ्टर दैट कंपनी इज लिफ्टेड और वो वापस से इशू करना चाहती है अपने 20% शेयर टू द मार्केट व्हिच कम्स अंडर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। And there are some other ways to raise the fund in the primary market. Offer for sale method. When shares are offered through an intermediary such as issue house, merchant and investment bank, it is called offer for sale. Okay. Private placement. Private placement में क्या होता है? जब एक कंपनी prospectus issue नहीं कर सकती है तो वो capital raise करती है by the private placement. वो उसमें एक small group of investor या investors के through funds raise किए जाते हैं। Okay. एंड राइट इशू। अंडर दिस मेथड क्या होता है कि एग्जिस्टिंग कंपनी इशू करती है शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन द प्रोपोर्शन, उनके नंबर ऑफ शेयर्स जो उनके पास ऑलरेडी है उनके प्रोपोर्शन में ही वो कंपनी उन्हें इशू करती है शेयर्स। ओके, और उनके पास राइट होता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास कि वो इस इशू को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। अगर वो रिजेक्ट कर रहे हैं या उन्हें नहीं चाहिए तो वो किसी और को सेल कर सकते हैं। इशू ऑफ बोनस शेयर। व्हेन द रिजर्व और सरप्लस प्रॉफिट जब एक कंपनी की कन्वर्ट की जाती है बिल्डअप कैपिटल में, दैट इज बोनस शेयर। ओके, और टाइप्स ऑफ मनी मार्केट क्या है? टाइप्स ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? लाइक
First is the call money, commercial bill, treasury bill, certificate of deposit, commercial paper, acceptance market, and repurchase agreement. So like the channel and hit the bell button to subscribe the channel and get your daily updates, friends. Thank you and grow with us. Get your subscription today for detailed and premium concept. Okay, thank you.